Good morning, Plus One Commerce. So, today we will be doing the last topic of chapter 4, that is the different types of insurance and the differences. Okay, so before that, there is one small topic which explains about the difference between insurance and assurance. Now, look, you have done the principles of insurance, and those who have not done, then please study that lecture first and then come to this lecture because otherwise, you won't be able to understand that. Okay, so basically, these two terms, insurance and assurance, they are the same term but slightly differ in their meaning. In simple words, you can say that assurance is life insurance and insurance is all other different types of insurances. The first term is assurance, ASSURANCE, and second is insurance. So, whenever I talk about life insurance, then that is assurance, okay? Why? Okay, so suppose whenever somebody takes life insurance, right? So, in that particular contract, it is obvious that whatever amount the insurance is of whatever amount it will be paid at the end of the maturity period, okay? Or if you die, it means कि life insurance जितने भी साल, suppose you have taken the life insurance for 10 years, so अगर 10 years over हो गए, right, तो या फिर अगर डेथ पहले हो गई तो इट इज़ सर्टन, इट इज़ वेरी श्योर दैट यू विल गेट द अमाउंट। जितनी भी अमाउंट की आपने इंश्योरेंस करवाई है वो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, मीन्स द इंश्योरेंस द इंश्योरर दे विल पे द अमाउंट टू यू बिकॉज डेथ इज़ सर्टन। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि होके ही रहेगा, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज लाइक यू कैन से फायर इंश्योरेंस फॉर इंस्टेंस, then in that case first we have to suffer the loss. If we suffer some damage or some loss, then only we can claim the compensation, then only the insurance company will give us the compensation, the amount. Okay, now what we will do the difference between insurance and assurance. So what does the first point say? So in contract of insurance, I have already told you this thing that you have to suffer the loss or some damage, then only you can claim the compensation. That is insurance. But in assurance, you have to pay the money. You have to pay the whatever sum assured is there, whatever the compensation is there, whether that person suffers a loss or not. It means चाहे उसकी death हो ना हो, अगर डेथ नहीं हुई और अगर उससे पहले मेच्योरिटी पीरियड आ गया, देन इट मीन्स यू हैव टू गिव द कंपनसेशन। सेकेंड पॉइंट, जो ये इंश्योरेंस टर्म है, इट इज़ यूज व्हेन द रिस्क इज़ अनसर्टन, मीन्स कि हमें नहीं पता कि लॉस होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फायर है, हमने अपनी तरफ से इंश्योरेंस करवा ली टू बी सिक्योर, लेकिन क्या पता फायर लगे ही ना हो, ठीक है, तो ये अनसर्टन है, फायर लग भी सकती है नहीं भी लग सकती। बट इन 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 अश्योरेंस जो ये रिस्क है ये सर्टन है क्योंकि डेथ होके ही रहेगी। या तो मेच्योरिटी पीरियड पहले आ जाएगा, अगर 10 ईयर्स की कराई है, 15 ईयर्स की कराई है, अगर मेच्योरिटी पीरियड पहले नहीं आएगा तो डेथ पहले हो सकती है। सो दिस इज़ सर्टन। थर्ड पॉइंट, कंपनसेशन विल ओनली बी पेड व्हेन दैट इवेंट हैपन्स, मतलब अगर फायर लगती है, अगर लॉस होता है, अगर डैमेज होता है, देन ओनली यू विल गेट द कंपनसेशन। लेकिन अश्योरेंस में क्या है कि वेदर दैट इवेंट हैपन्स और नॉट, यू विल गेट द कंपनसेशन। ओके, now how many types of insurance are there? In this chapter we will be studying about four. First is life insurance, then fire, then third is marine insurance, and fourth is health insurance. Okay, so what do you mean by life insurance? Life insurance and health insurance are totally different. Okay, so why people take life insurance? It is because of these two reasons. फर्स्ट इज़ द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, कि क्या पता हमारी बहुत पहले डेथ ना हो जाए, बहुत जल्दी डेथ ना हो जाए। एंड सेकेंड इज़ रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, कि
ये भी रिस्क हो सकता है कि हमारी काफ़ी लेट डेथ हो, ठीक है। सो ये क्यों लोग लेते हैं, जस्ट दैट कि अगर वो चीज़ अगर डेथ पहले हो जाती है, सो दैट यू नो उनकी जो फैमिली है, ठीक है, उनको एक तरह का सपोर्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। कई बार अगर आप खुद करवा लेते हो, सपोज़ करो आपने 10 ईयर्स की इंश्योरेंस करवाई थी एंड आपकी डेथ नहीं हुई, ठीक है, 10 ईयर्स ओवर हो गए, तो आपको कंपनी की तरफ से पैसे मिल जाएंगे। तो आप देखो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है। आफ्टर 10 ईयर्स यूल गेट द अमाउंट। अब वो आपके पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट इकट्ठा हो गया है जो कि आप अपने ओल्डर एज के लिए भी रख सकते हो। ओके, क्लियर? बिकॉज इन लाइफ इंश्योरेंस या तो डेथ हो जाएगी या मेचोरिटी पीरियड पहले आ जाएगा। तो ये तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो कंपनी वाले पैसे दे जाएंगे, वो पैसे फिर किसको मिलेंगे? आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी फैमिली के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। तो नुकसान तो कहीं पे भी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। नाउ अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इन एनी इंश्योरेंस वी हैव टू पे अ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट विच इज़ नोन एज प्रीमियम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमने वो कब पे करना है, हमें कंपनसेशन कब मिलती है? जब डेथ हो जाती है या फिर जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाए, विच एवर इज़ अर्लियर। अगर किसी ने 10 ईयर्स की कराई है तो 10 ईयर्स और डेथ विच इज़ अर्लियर। अगर किसी ने 15 ईयर्स की करवाई है तो 15 ईयर्स और डेथ विच एवर इज़ अर्लियर। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये प्रीमियम का अमाउंट कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जो कि इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है क्योंकि हम इंश्योरेंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर कोर्सेज, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इलनेस एंड डेथ रेट्स। मोर्टेलिटी रेट्स क्या हैं, ठीक है, इलनेस के क्या, जो मतलब वो स्टैट्स को स्टडी करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। ओके, तो हम ये प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकते कि एक पर्सन की डेथ कब होगी। तो वो क्या करते हैं कि एक जो लास्ट 10 ईयर्स का डाटा होता है, जैसे हम, ठीक है, वो उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे वो एक गैस वर्क चलता है इस पर। गैस वर्क, लेकिन सिंपल गैस नहीं होता, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। दे हैव टू यूज़ देयर इंटेलिजेंस, रैशनल पर्सन करते हैं ये। सिंपल गैस नहीं होता, मतलब कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, वो आप कैलकुलेट करके एक अमाउंट पे आ जाते हो। ओके, सो वट एवर दिस अमाउंट इज़, यू कैन पे दैट अमाउंट मंथली, यू कैन पे इट क्वार्टरली, यू कैन पे इट हाफ ईयरली, और आप एनुअली भी पे कर सकते हो। ओके, नाउ यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो उसमें से 3 ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। And I will ask you this question in the live session, that why it is not. Principle of indemnity, principle of contribution, and principle of subrogation. These 3 principles are not concerned with life insurance. First is principle of indemnity, then principle of contribution, and then is principle of subrogation. Okay. Now, what are the main elements of life insurance? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो मुझे पहले बता देना है अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपको हार्ट पेशेंट वाला एग्जांपल भी दिया था, दैट इफ़ समबडी इज़ गोइंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस और वो उसने नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो एक हार्ट पेशेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी एट द एंड मना कर सकती है कंपनसेशन देने के लिए। तो सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू टेल ऑल द important information related to your health to the insurance company whenever you are taking life insurance. Okay, second, very very important, the insurable interest must be present, must होना ही होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जब मेच्योर हो जाती है पॉलिसी, मतलब ख़त्म हो जाती है, तब ज़रूरी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी वो पर्सन ज़रूर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता है या अपने बच्चों की करवा सकता है जिसका उसके साथ कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आई कैन नॉट टेक द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ यू पीपल, ओके, बिकॉज यू आर नॉट रिलेटेड टू मी। ओके, तो जिस पर्सन की मैं करवा रही हूँ, दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जो बच्चा एग्जाम में ये वर्ड्स नहीं लिखेगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स।
देन थर्ड इज़ दैट लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। तो क्योंकि जो लाइफ है ह्यूमन बीइंग की वो हमें नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है, उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते हैं किसी भी बेसिस पे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होता है लाइफ इंश्योरेंस पे, ठीक है, वो पहले से फिक्स्ड होता है, ओके। जैसे फायर इंश्योरेंस में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि कितना नुकसान हुआ है, इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ फायर इंश्योरेंस। नाउ फायर इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी मींस एक इंश्योरर होता है, ठीक है, और दूसरी पार्टी क्या होती है? जैसे मैं हूँ इंश्योर्ड, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे मैं प्रीमियम पे करूँगी और उसके बदले में वो मुझे क्या देंगे? एक कंपनसेशन अमाउंट देंगे, ओके। कब देंगे? जब कोई लॉस होगा, ओके। अब लॉस क्या है कि कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है, या अगर सपोज़ डैमेज कैसे हो सकता है कि कहीं पे आग लग जाए, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है फायर के थ्रू, फायर से होनी ज़रूरी है, सिंपली प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, इट इज़ नॉट फायर इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस। अगर कोई भी नुकसान, कोई भी डैमेज इट इज़ रिलेटेड विद फायर, देन ओनली यू विल गेट द अमाउंट, ओके। ये भी कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट, 1 ईयर जनरली होता है ये, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं उसको हम पॉलिसी बोल देते हैं, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस हर पॉलिसी में होती है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में क्या होता है? नेम ऑफ़ पार्टीज़, ठीक है, मतलब कौन कौन पर्सन है, किस प्रॉपर्टी की, आप जैसे फैक्ट्री की अगर मैं करवा रही हूँ उसकी डिटेल्स मुझे देनी पड़ती है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, वो मेरी इंश्योर प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रही हूँ। कितने अमाउंट की करवा रही हूँ, कितना प्रीमियम मैंने पे करना है, कितने टाइम के लिए मैंने करना है, एंड मोस्टली आई हैव टोल्ड दिस इज़ फॉर 1 ईयर, ओके। दिस इज़ ऑल रिटन इन दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये फायर इंश्योरेंस है, ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस है तो प्रोटेक्शन देगा किसकी अगेंस्ट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ दैट लॉस और डैमेज इज़ डन बाय फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्चुअल फायर होनी चाहिए, इट शुड बी यू नो अपने आप लगनी चाहिए, कुछ एक्सीडेंटल होना चाहिए, खुद मतलब इट शुड नॉट बी इंटेंशनल, खुद जाके आप आग लगा रहे हो, वैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट वैसे एथिकली इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। अगर राइट्स हो रही हैं, ठीक है, दंगे हो रहे हैं, रिबेलियंस हो रहे हैं, देन एट दैट प्लेस कुछ अगर उस लड़ाई में यू नो कुछ आग लग जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, देन यू कैन क्लेम द अमाउंट, ओके। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? अब मैंने आपको बताए थे प्रिंसिपल्स, फायर इंश्योरेंस पे सारे के सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में 3 प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन फायर में सभी एप्लीकेबल हैं। इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी इम्पॉर्टेंट है, दैट दिस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जब हमने पॉलिसी ली है तब तो होना चाहिए, और जब लॉस हुआ तब भी वो होना चाहिए, ओके। दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस का, इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost गुड फेथ, मीन्स वी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसकी भी इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये तो प्रॉपरली पूरी तरह से एप्लीकेबल है, क्योंकि यू नो जितना आपका लॉस हुआ है या जितने की आपकी प्रॉपर्टी है, विच एवर इज़ लेस, उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे 3 लाख का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, पर अगर लॉस 2,50,000 का हुआ है तो आपको कंपनी कितने देगी? 2,50,000 ही देगी, ओके। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और ये कंपनसेशन सिर्फ तभी पे होगा जब लॉस कब किसकी वजह से होगा? फायर से। इट मीन्स कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा, ओके। नेक्स्ट इज मेरीन इंश्योरेंस। Now what do you mean by marine? ओके, सो ये जो मेरीन इंश्योरेंस है यहाँ पे मीन्स अगर मैं कुछ भी शिप में लेके जा रही हूँ, जैसे कुछ लोग अपने गुड्स को शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, ठीक है, गुड्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप शिपिंग करवाते हो जिसकी, तो
अब शिप में अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो डैमेज तो हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप किसी और शिप के साथ कोलाइड कर सकते हो, ठीक है। पानी आ सकता है आपकी शिप में, या फिर कोई आके आपकी शिप को जैसे होते हैं ना लोग आके लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर टू शिप्स, दूसरे वाले आके आपकी शिप पे आप पे आके कब्ज़ा कर लिया। तो ऐसे डेंजर से बचने के लिए आप मेरीन इंश्योरेंस करवाते हो, ओके। तूफ़ान आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, उससे अगर नुकसान हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर मेरीन इंश्योरेंस। कोलिशन मैंने आपको बता दिया, अगर दो शिप्स टकरा रही हैं, कोई कैप्चर कर लेता है, शिप डूब जाती है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इन केसेस में आपकी इंश्योरेंस हो सकती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, मैंने आपको पहले ही बताया ये। तो अब ये जो इंश्योर्ड है, ठीक है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस ली हुई है, ये कार्गो ओनर हो सकता है। कार्गो ओनर मतलब जिसके गुड्स हैं। शिप का ओनर भी हो सकता है क्योंकि उसको अपनी शिप प्यारी है। फ्रेट ओनर, फ्रेट रिसीवर भी इसमें है। फ्रेट इज़ खर्चा, क्योंकि कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक गुड्स पहुंच नहीं जाएंगे एक डिज़ायर्ड प्लेस पे, तो उसका खर्चा एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर आता है। तो अगर गुड्स डैमेज हो गए तो ऑब्वियसली उसको भी नुकसान है, क्योंकि वो कैरेज पे कर रहा है। फ्रेट इज़ कैरेज, ओके। अब यहाँ पे जो इंश्योरर है उसको हम बोलेंगे अंडरराइटर, ओके। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, जिसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे देती है। लेकिन ये जो लॉस है, ये डैमेज कुछ भी अगर हो रहा है, इट शुड बी डन बाय सी पैरल, सी डेंजर्स जो होते हैं, ओके। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। फर्स्ट इज़ cargo insurance, okay. Cargo, okay, wait, ouch, okay. So there are 3 types of marine insurance policies. First is cargo insurance. कार्गो इंश्योरेंस में क्या आता है कि जो गुड्स उस शिप में हैं, ठीक है, उसके लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, या फिर जो पर्सनल चीज़ें होती हैं क्रू की, जो शिप चला रहे होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने सामान की इंश्योरेंस करवानी है देन दे कैन गो फॉर कार्गो इंश्योरेंस, ओके। नेक्स्ट इज़ हल इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा शिप इंश्योर हो जाता है, पूरी शिप, उसके सारे इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर, सब कुछ, ठीक है। और ऑब्वियस है कि पूरा शिप इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, तो कौन करवाता है ये इंश्योरेंस, ओनर ऑफ द शिप, उसको हम बोलते हैं हल इंश्योरेंस, ओके। सो कार्गो इज़ रिलेटेड विद गुड्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स। हल इज़ it is related with the whole ship and its related equipments, okay. Next is freight insurance. So अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है रिलेटेड विद द फ्रेट ऑफ गुड्स। अगर शिप ओनर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया गैरेज का, फ्रेट का, ठीक है, तो कब नहीं पूरा कर पाएगा, अगर कोई नुकसान हो रहा है विद द बिकॉज ऑफ सी पैरल्स, तो तब उस केस में हम फ्रेट इंश्योरेंस करवाते हैं, ओके। अब आपकी बुक में, ओके फाइन, सो द फर्स्ट पॉइंट इसका एलिमेंट क्या है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग, एट द टाइम ऑफ लॉस। इट मीन्स कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ लॉस प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इस पर भी एप्लीकेबल है कि हमें सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है वो हमें बतानी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इस पर प्रॉपरली पूरी तरह से स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है कि जितना नुकसान होगा उतना, या फिर पॉलिसी अमाउंट जो भी उन दोनों में से कम होगी वो ही आपको कंपनसेशन मिलेगी। और कंपनसेशन सिर्फ तभी मिलेगी अगर लॉस किससे रिलेटेड है, सी पैरल मीन्स सी डेंजर्स, इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा भी फॉलो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जब हम मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट के बारे में बात करते हैं, और मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट हम कब करते हैं, जब कोई इलनेस होती है ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन या उसकी फैमिली, ओके।
तो ये 5 कवरेज करती है। फर्स्ट इज़ बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपके हॉस्पिटल के खर्चे हैं, बेड के खर्चे, ठीक है, बेसिक जो एक्सपेंसेस होते हैं या डॉक्टर की जो सर्विसेज होती हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होते हैं कि अचानक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, सडन डैमेज, यू नो कुछ हो जाए तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, जो ज़्यादा ओल्ड लोग होते हैं, एल्डर पीपल, वो काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल रहते हैं, कभी कभी हर कोई नहीं, जो कि ज़्यादा जिसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके जो नर्सिंग होम चार्जेस होते हैं, क्योंकि उनका जो पूरी लुक आफ्टर होता है वो वहाँ पे नर्सेस करते हैं, कंटिन्यूसली वही देखभाल कर रहे हैं, तो वो उसमें कवर होता है। मेडिकल सप्लीमेंट क्या होता है कि कई बार आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, दे आर नॉट गोइंग टू पे ऑल द रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो उस कई बार क्या होता है तो मेडिकल सप्लीमेंट वाले आ जाते हैं, एक तरह की को इंश्योरेंस होती है जो कि वो आपको हेल्प करते हैं कि जो आपके रिमेनिंग हेल्थ केयर कॉस्ट हैं जो कवर नहीं हो पाए, ठीक है, जो आपको जो ओरिजिनल आपकी कंपनी ने पे नहीं किया, वो आप इनके थ्रू पे करवा सकते हो, तो ये गैप फिल करते हैं एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिसेबिलिटी इनकम। अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस ली हुई है तो वो चीज़ डिसेबिलिटी इनकम भी कवर करता है कि अगर सपोज़ अब वो इंश्योर्ड है, जो पर्सन है वो अब अनएबल टू वर्क है, ठीक है, मतलब सपोज़ करो उसका फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया उसको, तो जितनी भी इनकम वो इस टाइम अर्न कर रहा होता, अगर वो ठीक होता तो उसका जितनी भी इनकम लॉस्ट हुई है इस पीरियड के लिए वो भी इसमें कवर हो जाती है। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस। तो बेसिक भी कवर किए जाते हैं, मेजर भी कवर किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म अगर हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल में है उसके भी खर्चे, नर्सिंग खर्चे पूरे किए जाते हैं। मेडिकल सप्लीमेंट दी जाती है कि जो आपकी रिमेनिंग हेल्थ केयर कॉस्ट है वो हेल्प करते हैं आपको पे करने में, जो कि ओरिजिनल इंश्योरेंस वाले आपको नहीं पे कर रहे होते। डिसेबिलिटी इनकम इज़ ऑल्सो कवर्ड हेयर। ओके, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस इन जनरल। सो लाइफ तो आपको पता है, अब जनरल में बाकी सारी की सारी आ जाती हैं, जैसे फायर एंड मेरीन एक्सेट्रा। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है तो रिस्क क्या है, सर्टन है, और पर्सन को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है, जब डेथ हो जाएगी तब, नहीं तो अगर मेचोरिटी पीरियड ख़त्म हो गया तब। जनरल इंश्योरेंस में क्या है कि जो रिस्क है वो अनसर्टन है। ओके, तो वो लॉस सफ़र कर भी सकता है, नहीं भी। नेक्स्ट इज़ कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियस है कि वो चीज़ डेथ या मेचोरिटी पीरियड आएगा ही आएगा, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है जैसे फायर मेरीन, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि जितना लॉस एक्चुअल में होगा या पॉलिसी का अमाउंट विच एवर इज़ लेस वो कवर किया जाएगा। थर्ड, आपको अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तो आपको 2 एलिमेंट्स वो कवर करता है, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। ओके, क्योंकि प्रोटेक्ट तो हो ही रहे हो, और अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, मतलब आपकी कंपनसेशन मिल जाती है, तो वो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई एक तरह से। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन कवर होती है। फोर्थ में क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरमेंट ट्रस्ट है ही मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, लेकिन इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, मतलब अगर फायर की बात करूँ तो उसमें तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए, जो इंश्योरेबल ट्रस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ लॉस भी। लेकिन मेरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो टाइम ऑफ डैमेज पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस में अगर पार्शियल लॉस नहीं वो कवर करते, ठीक है, क्योंकि पार्शियल लॉस इसमें क्या है, डेथ इज़ डेथ, डेथ किसी की पूरी होती है, कभी किसी की हाफ डेथ नहीं होती है। लेकिन अगर फायर और मेरीन है मीन्स जनरल इंश्योरेंस, उसमें पार्शियल प्रोटेक्शन आपको दे कैन ऑफर। नेक्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, लेकिन जनरल में ज़रूरी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जब अगर सपोज़ करो आपने फायर इंश्योरेंस करवाई थी फॉर 1 ईयर, नाउ द 1 ईयर इज़ ओवर, अब आप दोबारा रीन्यू करवाना चाहते हो अगले साल के लिए, तो आप उस टाइम पे जब रीन्यू होता है उस टाइम पे इस पॉलिसी में आप प्रीमियम का अमाउंट चेंज करवा सकते हो। अगर लाइफ इंश्योरेंस में पर्सन चाहता है कि सरेंडर कर दूँ मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, ठीक है, उसकी मतलब 10 ईयर्स थे पर मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं आगे करवानी, अभी 8 ईयर्स हुए थे, तो वो चीज़ पॉसिबल है, हम सरेंडर कर सकते हैं उस पॉलिसी को, ख़त्म कर दो इस पॉलिसी को भी,
ठीक है, लेकिन जो फायर और मेरीन है जनरल इंश्योरेंस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस 15, 20, 30 ईयर्स के लिए हो सकती है। जनरल इंश्योरेंस इज़ फॉर 1 ईयर, उसके बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हो। ओके, लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मेरीन। दोबारा से हमने वही रिवाइज करना है। 6 पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए इसमें। सब्जेक्ट मैटर क्या है लाइफ का? ह्यूमन लाइफ। फायर में जो भी आप प्रॉपर्टी या एसेट जिसकी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। मेरीन में आप शिप, कार्गो या फ्रेट। एलिमेंट क्या है? मैंने आपको बताया लाइफ जो है वो प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों हमें एलिमेंट कवर करती है, लेकिन फायर एंड मेरीन दे जस्ट कवर ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज़ प्रोटेक्शन। Insurable interest I have already told you a number of times. Duration is insurance is 5 to 30 years और बाकी दोनों में क्या होता है 1 ईयर। मेरीन में भी इट्स 1 ईयर और फॉर अ पीरियड ऑफ वॉइज। वॉइज मीन्स कि जो मेरी जर्नी है, सपोज करो आई एम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, लाइक फ्रॉम सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू गुजरात, तो वो एक जो जर्नी है मेरी, वन वॉइज, वो दैट इज़ वन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वन वॉयज। तो उस पीरियड के लिए भी आप एक जर्नी के लिए भी करवा सकते हो। इंडेमनिटी तो लाइफ पे इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, लेकिन बाकी दोनों में होता है। लाइफ इंश्योरेंस का जो लॉस है वो आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फायर मेरीन का आप लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास एक सरेंडर वैल्यू होती है, बाकियों में नहीं होती। अब सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट हम उस पर्सन को दे रहे हैं जिसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, और वो तभी करेगा मतलब उसकी मैच्योरिटी पीरियड से पहले। अगर 10 ईयर्स की ली थी, अब सरेंडर कर दिया, अभी 8 ईयर्स ही हुए थे, तो उसके हिसाब से उसको अमाउंट पे हो जाती है। तो दैट इज़ द सरेंडर वैल्यू विच इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस आप जितने मर्जी अमाउंट की करवा लो। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में जितनी जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, फैक्ट्री है या कोई एसेट है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा की नहीं करवा सकते हो। अगर फैक्ट्री 2 करोड़ की है तो आप 2 करोड़ की करवा सकते हो, उससे ज़्यादा की नहीं। मेरीन में जितनी भी आपकी शिप की कॉस्ट है, ठीक है, शिप की वैल्यू है, या जितनी भी आपकी गुड्स की मार्केट प्राइस है, उससे ज़्यादा की आप नहीं करवा सकते हो। शिप एंड कार्गो मीन शिप एंड गुड्स की मार्केट प्राइस से ज़्यादा आप नहीं करवा सकते हो। रिस्क, अब सर्टिनिटी एलिमेंट है क्योंकि डेथ तो होनी होनी है, ठीक है, तो आपको क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो फायर इंश्योरेंस है वो उसमें कौन सा एलिमेंट है? अनसर्टिनिटी। तो आपको डिपेंड करता है कि लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों में। सी में भी लॉस हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और अगर लॉस नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि डेथ इज सर्टन, तो आपको कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? सो the next topic, communication services, it has been deleted for this year by the board, so we are not doing that. So on Thursday we will be doing chapter number 5, and tomorrow I will be asking you about the principles of insurance in the live session. Okay, thank you.